Good morning, students. Last time I discussed with you about the electronic configuration, particularly the rule associated with extra stability, exchange energy effect, or symmetry effect. Now I am going to discuss about the questions related to quantum numbers and the configurations. Suppose the question is, what is the value of n, l and m for unpaired electron for fullerene atom? Having configuration this one. 1s2, 2s2, 2px2, 2y2, 2pz1. Now, the configuration, suppose it is given to you. If it is not given to you, so it may be one may enter to x, y or z. One of them, the orbital will be half. If the configuration is given to you, then what is the value n and m? So, for unpaired electron, in this case the unpaired electron goes to 2pz orbital. So n is 2, p 0 1 sp. So l is 1, n1 m0 pz orbital. अगर ये कॉन्फ़िगरेशन ना दिया होता तो आपका आंसर होता n2 l1 m0 or +1 or -1, anyone. But in this case the configuration is given to you, and then for a same configuration, now the question is, how many electrons are present in fullerene atom corresponding to n equal to 2, l equal to 1, n2 l1 2p. 2p, it may be 2px, it may be 2py, it may be 2pz. So 2 plus 2 plus 1, 5 number of electrons from superscript. So answer is 5. How many electrons are present in fullerene atom correspond n2 l0. n2 l0, 0 l0 is s with 2s orbital, 2 electrons. If only l is 0 given, then it becomes 2 plus 2, 4 electrons. It may 1s or 2s, but in this case n2 l0. So if 2pz orbital in fullerene atom has spin +1 by 2, unpaired electron may have +1 or -1. Then if 2p orbital in fullerene atom has spin +1, then how many electrons are present in fullerene atom corresponding to clockwise spin? +1 by 2. 1 electron, here 1 clockwise, 1 anti-clockwise, here 1 clockwise, 1 anti-clockwise. 2 electron in orbital have always opposite. So the total answer is 1 plus 1 plus 1. This comes out to be 3. Another, if if 2p orbital, how many electrons are present in the fullerene corresponding to spin +1 by 2? It should be 5. How? 1 clockwise, 1 anti-clockwise, 1 clockwise, 1 anti-clockwise, 1 clockwise, 1 anti-clockwise, 1 clockwise, 1 anti-clockwise, and 1 clockwise. So it is 4 plus 1. It is 4 plus 1 comes out to be 5. If all the subshells are fully filled, then how many electrons are present with the spin +1 by 2 for the fourth shell? Only for fourth shell.
तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर शेल इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n स्क्वायर 2n स्क्वायर 2 into 4 square mean 32 electrons. 32 electron, 16 clockwise, 16 and because all the orbitals are fully filled. So answer is 16 electron. 16 electron plus 1 by 2, 16 minus 1. These are the questions which are connected with electronic configuration and the quantum number. Chromium. This is the configuration. How many electrons are present in chromium for n equal to 3, l equal to 2? n3, l2, 0, 1, 2, spd means 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो यहाँ पे पता चल गया 3d में कितने हैं? 5. Then how many electrons are present? How many electrons are present in chromium corresponding to l equal to 1? l equal to 1. l equal to 1 means p. चाहे वो 2p हो, 3p हो या और कोई हो. तो 2p में कितने गए? 6. 3p में कितने गए? 6. 6 plus 6, 12. How many electrons are present in the chromium corresponding to l equal to 1, m equal to 1? 0. L1, m0 means pz orbital. This also contains pz orbital. This also contains 2 plus 2, 4. अब ये नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि जितने भी ये क्वांटम नंबर्स हमने लिए ये आए कहाँ से? कहाँ से लिया हमने? ये प्रिंसिपल है, मैग्नेटिक स्पिन, क्वांटम नंबर कहाँ से आए? कहाँ से आए? Schrodinger wave equation, which is based upon quantum mechanics. You have to cram this equation. Suppose this is the x-axis, y and z-axis, and here is electron in dimension dx, dy, dz, or theta, r, theta, and phi. This is the distance from the nucleus, and this is the region. This is the thickness in which there is a probability of finding electron. So this thickness is dr. बिल्कुल वाटरमेलन की तरह बीच वाला पोर्शन आर रेड पोर्शन जो छिलका है वो स्मॉल, वो dr के लिए स्मॉल. इसमें तो और भी थिकनेस होगा. तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा? r plus dr. दिस थिकनेस इज dr. तो अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर कर्ली स्क्वायर साइन, अभी तक डिफरेंशिएशन पढ़ी आपने मैथमेटिक्स में. दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन. हायर मैथमेटिक्स में क्या हो जाएगा? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी आ जाएगा. उस केस में इसके प्रोनाउंसिएशन क्या है? कर्ली. कर्ली स्क्वायर साइन कर्ली एक्स स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर साइन कर्ली वाई स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर साइन कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर ई माइनस बी साइन. Pronunciation sun. P silent equal to 0. क्या इसको रिड्यूस कर सकते हैं? इस कर्ली को हम डेल स्क्वायर बोल सकते हैं. डेल और ने प्लस डेल स्क्वायर साइन जहां तक आ गया बाकी. और हैमिल्टोनियन साइन पर टू साइन हैमिल्टोनियन फंक्शन. E is the total energy, B is the potential energy. Because electron is not at rest, टोटल में से पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर दिया, एनर्जी ड्यू टू मोशन आ गया. psi is only an amplitude of a wave, it is a function of coordinate axis x, y and z or Cartesian coordinate r, theta and phi. तो इस केस में कितने वेरिएबल्स हैं? 3. m मास कांस्टेंट, h फ्लक्स कांस्टेंट, y कांस्टेंट. तो वेरिएबल 3 है. तो अगर मैं इस इक्वेशन को फैक्टराइज करता हूं तो कितनी इक्वेशंस बन सकती हैं? 3 बन सकती हैं. कैसे लिखूंगा? x x प्लस
प्लस जेड इक्वल टू 0। जैसे छोटी क्लास में करते आए हैं, कोई एक्स वाई जेड इन्वॉल्व इक्वेशन थी, आपने इसको सोल्व कर दिया, एक्स माइनस 4 वाई प्लस 2 जेड माइनस 6 इक्वल टू 0। पहले कोई इक्वेशन को फैक्टराइज कर लिया, फिर इंडिविजुअल से एक्स वाई जेड की वैल्यू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 इस ढंग से निकाला। इसी ढंग से मैं इसको फैक्टराइज कर लिया और रिजोल्व कर लिया, इस ढंग से इक्वेशन आ जाएगी। कैपिटल S is a function of x, capital Y is a function of y, capital Z is a function of z. Each individual function is called as eigenfunctions. And the values which are obtained by solving eigenfunction are called as eigenvalues. Since there are three variables, we can find out the value of quantum number only corresponding to three quantum number. कौन से? n, l and n। और यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से क्वांटम नंबर की वैल्यू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं मिलती, एंड दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर। एज ए प्रिंसिपल एज ए मैग्नेटिक मिल जाएगी, इन इक्वेशन को सॉल्व करके मिल जाएगी। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साई? साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, it is simply an amplitude of a wave and is a function of x, y, z। क्या ये हमें प्रोबेबिलिटी की इंफॉर्मेशन देता है? नो, साई बिल्कुल भी प्रोबेबिलिटी की इंफॉर्मेशन नहीं देगा। मैं अगर साई अगेंस्ट 1s अगेंस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस करता हूँ, फॉर 1s ऑर्बिटल इस ढंग से करवाता है, और साई 2s के लिए इस ढंग से। अगर मैं साई को प्रोबेबिलिटी मान लेता तो यह तो बिल्कुल टोटली अपसर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, R0 न्यूक्लियस प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, which is not possible। फर्स्ट रीजन क्यों प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, न्यूक्लियस पे प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे हो ही नहीं सकता। और यहाँ तो ये कि अगर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, और यहाँ पे तो एक और अगर न्यूक्लियस प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, और यहाँ पे नेगेटिव प्रोबेबिलिटी आ रही है। प्रोबेबिलिटी 0 तो हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। और यहाँ से ये पता चल गया कि साई प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, साई की फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो क्या जैसे लाइट में हम स्केयर कर देते हैं, इंटेंसिटी पता चल जाती है, तो क्या इसमें भी हम स्केयर करें तो कुछ फर्क पड़ेगा? देखते हैं। अगर हम इसको स्केयर करते हैं तो एक ही डिफरेंस आता है। 1s के केस में तो कोई नेचर में फर्क नहीं पड़ रहा, 2s में फर्क पड़ रहा कि अब नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं है। द रीजन इज 2 स्क्वायर इज 4, -2 स्क्वायर इज आल्सो 4, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर भी पॉजिटिव। एक लिमिटेशन दूर हुई, लेकिन मेजर लिमिटेशन अभी भी यही है कि इंस्टेंशियल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए न्यूक्लियस पे, जो कि नहीं है। तो गलती क्या कर रहे हैं हम? गलती कर रहे हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर प्रोबेबिलिटी हम यहाँ तक के देख रहे हैं, इस रीजन के अंदर देख रहे हैं। मुझे देखने किस चाहिए? इस रीजन के अंदर देखना चाहिए। तो मुझे इस कंसेंट्रिक शेल का वॉल्यूम चाहिए। तो आउटर शेल का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ
आउटर शेल 4/3 pi r plus dr whole cube, that is 4/3 volume of inner shell. This is equal to 4/3 pi r cube. Then volume of this concentric shell, ये कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ कंसेंट्रिक शेल, आउटर शेल वॉल्यूम 4/3 पाई, कितना हुआ? r क्यूब प्लस dr क्यूब प्लस 3r स्क्वायर dr माइनस 3r dr स्क्वायर माइनस, अब इसका कर दें माइनस r क्यूब, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा। 9th में आपने पढ़ लिया एटम का रेडियस बहुत ही छोटा होता है, एटम का रेडियस बहुत छोटा होता है, और ये तो एटम के अंदर ये तो वैल्यू उसके मुकाबले में छोटी है, और स्मॉल वैल्यूज की जो होगा स्क्वायर के ऊपर भी छोटा हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.1 का स्क्वायर 0.01, 0.1 का क्यूब 0.001 और छोटी हो जाती है। तो as a result, since dr is very small in comparison to all, we can easily neglect the terms involving dr cube and dr square, इनको हम इजली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फिर बाकी बचेगा क्या? बचेगा 4/3 पाई सॉरी यहाँ प्लस का साइन है, माइनस नहीं है, प्लस 4/3 r स्क्वायर dr, 3 कैंसिल हो गया, तो 4πr स्क्वायर dr। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कंसेंट्रिक शेल। अब इस कंसेंट्रिक शेल का वॉल्यूम पता चल गया, तो अब हम देखते हैं कि अगर हम साइज स्क्वायर के साथ इसको अटैच करते हैं तो क्या होगा। एज पर श्रोडिंगर, अब हम प्लॉट करते हैं 4πr स्क्वायर dr साइज स्क्वायर 1s अगेंस्ट r। तो अब करो इस ढंग से आया, बिल्कुल करेक्ट। सेंटर पे प्रोबेबिलिटी कम जोन में बढ़ती गई, हियर इज द प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम देन दिस वन, और जहां पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आई वही क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ एन एटम। और श्रोडिंगर जिसने जो सच नोट किया, दिस वैल्यू इज 52.9 पिकोमीटर फॉर हाइड्रोजन एटम। बोर्स ने भी इतनी वैल्यू बताई, और आज की जितनी थ्योरी है वो भी यही बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट जो है किसको बता रहा है? प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी को बता रहा है। तो ये इस कर्व को क्या बोलेंगे? रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल। तो कहेंगे 2s का कैसा होगा?
2s के केस में यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर 2s आर this is for 1s, this is for 2s. और यहाँ पे क्या मिला? नोड. Node means where the probability of finding an electron is negligible. तो ये कर्व किसका बना? ये कर्व बना 2s ऑर्बिटल रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. न्यूक्लियस में नेग्लिजिबल 1s के इसमें नेग्लिजिबल. तो 1s 2s के बीच में थोड़ा सा सर्टेन रीजन आएगा वे प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल. कहीं जीरो कहते हैं तो जीरो तो यहाँ भी है. तो ऐसे टर्म्स भी बोल देते हैं कभी. नोडल पॉइंट, the point at which the probability of finding electron is negligible. Nodal plane, the plane in which the probability of finding electron is negligible. Nodal axis, the axis at which the probability of finding electron is negligible. तो जब नोड या नोडल होगा तो हमें ध्यान में रखना होगा. तो सेकंड के केस में क्या हमने देखा, उसकी हाइट ज्यादा है. 3s में क्या होगा, एक और कर्व आ जाएगा जिसमें और हाइट ज्यादा हो जाएगी. तो क्या सर एस के बन सकते हैं? नहीं, 2p के भी बनेंगे, 3p के बनेंगे. अगर मैं 2p का करूं तो क्या लिखूंगा? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर 2p अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी तो ये हो गया. तो एस का 2p क्योंकि 1p तो होता ही. तो 1s 2p 3d 4f का रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक जैसा होगा. इस इन सेम है 2d 1d पॉसिबल नहीं. इसे 1f 2f 3f पॉसिबल नहीं है. क्वांटम नंबर में कर लिया. और इसी ढंग से 2s 3p 4d 5f का रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व एक जैसा होगा. अगर हमें हमारे सीधा स्फेरिकल नोड पूछ ले कितने होंगे किसी के अंदर, नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स इज इक्वल टू n minus l minus 1. This is the number of spherical nodes. Like for 3s orbital spherical nodes is equal to 3 minus 0 minus 1 comes out to be 2. बिल्कुल करेक्ट. 1s 2s के बीच में, 2s 3s के बीच में. और यही फॉर 3p ऑर्बिटल हो जाता, 3p ऑर्बिटल तो कितना हो जाएगा? 3 minus 1 is equal to 1. तो 1p तो पॉसिबल नहीं है. देन 2p एंड 3p के बीच में एक ही होना होगा. इस ढंग से आप बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं. ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है. गो थ्रू दिस चैप्टर. I may ask some questions next time.